So the first question was, how the food is pushed down in the alimentary canal. Okay, so here you have to give the answer of peristalsis, right? So the food, it moves from the esophagus in the wave-like motion that we called as peristalsis. ठीक है बेटा? Okay. Write full form of ORS and its use. So ORS is oral rehydration solution, and it is used in case of diarrhea. Okay. When there is a condition of continuously passing the watery stool, right, which loses water and other salt from the body. Okay, so in order to enrich the body with the lost salts and waters and minerals, right, ORS solution is taken. Right? Write down the relation between degree Celsius and Fahrenheit. तो ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था that degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius plus 32. ठीक है, so this is the relation between degree Celsius and Fahrenheit scale. Okay, next you have to give the difference between, write one difference between clinical and laboratory thermometer. तो ये तो बहुत easy है. Differences तो हमने वैसे डिस्कस किए हुए हैं कि एक में किंक है, clinical thermometer has kink. Okay, while the laboratory thermometer don't have kink. ठीक है, उसमें किंक नहीं है. प्लस दोनों की पोजीशंस, क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम ऐसे होल्ड करते हैं इन दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ठीक है, और आप टिल्टेड भी कह सकते हो. राइट, ऑन द अदर हैंड जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हम ऐसे वर्टिकल पोजीशन में लेते हैं और इन द स्ट्रेट पोजीशन. ठीक है, यस. टेम्परेचर रेंजेस का फर्क है दोनों में. ओके, 35 to 42 for the clinical and -10 to 110 for the laboratory thermometer. ओके, एक को हम यूज करते हैं टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. क्लिनिकल थर्मोमीटर हम किस लिए यूज करते हैं? बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ह्यूमन बॉडी. ठीक है, दैट लाइज विदिन 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. बट जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है दैट वी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर हॉट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है जी. Okay, so enough differences are there. Write about the relationship between rhizobium and pea plant. How do they benefit each other? तो ये मैंने आपको बताया था that legume plants. Pea plant is a leguminous plant. ठीक है, तो हमने इसमें यहाँ पे legume plants और rhizobium की symbiosis की बात करनी है. ठीक है, so they are having symbiotic association between them where they both are benefiting each other. ठीक है, राइजोबियम क्या करता है कि इसके लिए पी प्लांट के लिए, दैट इज अ लेग्यूम प्लांट दैट नीड नाइट्रोजन. ठीक है, लेग्यूम प्लांट्स को एक्सेस में नाइट्रोजन चाहिए होती है. ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे हेल्प टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये पी प्लांट के लिए, लेग्यूम प्लांट्स के लिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं. एंड इन रिटर्न लेग्यूम प्लांट्स इनको क्या देते हैं? फूड एंड शेल्टर. ठीक है, सो इन दिस वे दे बोथ हेल्प ईच अदर. ओके, एंड दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, symbiosis. Why humans can't digest cellulose but cows can? Okay, so we have discussed this. अभी हमने ये चैप्टर रिवाइज भी किया था कि that the humans, they are not having the cellulose digesting enzymes in them that are actually present in the, हाँ जी, that are present in the ruminants, because plant cells, they are made of cell wall that is made up of cellulose. ठीक है, तो cellulose जो है वो humans नहीं digest कर सकते because they are not having the cellulose digesting enzymes in them. Okay, but cows, they are having a sac-like structure called cecum in which the the cellulose digesting enzymes, they are present. Okay, तो ये आपने लिखना था इसमें. Why do we wear dark colored woolen clothes in winter season?
हाँ जी, वाई वी वेयर डार्क कलर वूलन क्लोथ्स। तो वूलन क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं? बिकॉज डार्क कलर इट एब्जॉर्ब्स मोर, सबसे पहले, ठीक है। डार्क कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर. Okay, so in the winter season it will help to absorb more heat, ठीक है, from the surroundings and thus keeping our body hot और warm. ठीक है, तो इसीलिए ये हमें विंटर्स में क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं. डिस्कस फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो ये हमने कल ही किया था अभी डायग्राम. ठीक है, सारा बताया था ना मैंने कल अमीबा का. ये अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है दैट फीड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक थिंग्स. ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो फिंगर आउट करता है टू कैप्चर द फूड एंड फॉर द मूवमेंट. ओके, तो उसके बाद हमने उसके 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन दिखा देने थे अमीबा के. क्लियर? So this was all about your test. Okay, shall we continue with the heat chapter now? So we have to define the modes of heat transfer. हीट जो है वो कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है. ओके, सो फर्स्ट मोड हमने कल किया था कंडक्शन मोड, दैट इज देयर इन केस ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, तो जो सॉलिड्स हैं, the particles of the solids they don't move from their place. Okay, so rather they transfer this heat from the one end to the another end of that substance. ठीक है, तो अगर हमारे पास एक hot iron rod है that is having the hot end on one side, ठीक है, ये इसका hot end है which is having the heat. ठीक है, तो जो solids है उसमें particles जो है वो ऐसे arranged होते हैं. And this is the second end, that is the cold end. तो जिस पार्टिकल के पास हीट है उसने क्या करना है? उसने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है, बट इट इज जस्ट पासिंग दैट हीट टू द अदर पार्टिकल सो दैट इट कैन रीच टू द अदर एंड ऑफ द मेटल रॉड. ठीक है, सो इन दिस मोड ऑफ कंडक्शन, राइट, it is the process of heat transfer in which the heat is transferring from one particle to the another particle or from the hot end to the cold end. ठीक है, without traveling or without leaving its position. ठीक है, the particles they are not leaving their position. Okay, but इस मेथड के लिए दो कंडीशंस होती हैं. कंडक्शन के लिए we need two conditions for the heat transfer. ठीक है, सबसे पहले तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं they must be in contact. ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ टच होने चाहिए. दे शुड बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर. और जो सेकंड चीज आ जाती है दैट दे मस्ट बी हैविंग द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन देम. टेंपरेचर डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों के टेंपरेचर जो है वो अलग अलग होने चाहिए, यानी कि एक हॉट होना चाहिए और एक कोल्ड होना चाहिए. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हॉट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट कोल्ड होना चाहिए, या उसी सेम सब्सटेंस का एक एंड जो है वो हॉट होना चाहिए और कोल्ड दूसरा जो है वो कोल्ड होना चाहिए. ठीक है, तो इसकी नॉर्मल एग्जांपल है, आप जो भी अपने किचन में चीजें गर्म करते हो ऑन द बर्नर, ठीक है, पैन हो गया, ओके, सूप जो है उनको बॉईल करते हो, हीटिंग ऑफ द पैन, सो दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वेयर द थिंग्स दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर. ठीक है जी, ओके, तो यही आपकी एक एक्टिविटी थी आयरन रॉड की, जहां पर आपने एक आयरन रॉड लेनी है और यहाँ पर आयरन नेल्स जो हैं वो स्टिक करने स्टार्ट करने हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्स. थी ना आपकी एक्टिविटी? सो यू जस्ट हैव टू हीट द वन एंड ऑफ दैट रॉड. ओके, तो जब आप एक एंड जो है वो उसको हीट करना स्टार्ट करोगे, सो व्हाट यू विल सी कि जो हीट है यहाँ से होते हुए इट विल ट्रांसफर लाइक दिस फ्रॉम द अदर एंड. तो कॉन्सिक्वेंटली जो आपकी आयरन नेल्स हैं दे विल स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन. ठीक है, क्योंकि जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी बाय रिसीविंग द हीट.
तो ये जो आयरन नेल्स है ये क्या कर जाएंगे, ये नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। लाइक वी आर टेकिंग अ पैन, ठीक है, एक बीकर ले लेते हैं सपोज। बीकर के अंदर हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है सपोज। अब ये जो बीकर है, बीकर ने अपनी हीट किसको ट्रांसफर करनी है, वाटर को। हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम बीकर टू वाटर, दैट इज कंडक्शन। ये कंडक्शन मोड में आ जाता है। ठीक है, बाहर वाली चीज गर्म हुई, उसने जो हीट है वो अंदर वाली चीज को सप्लाई करनी है, दैट कम्स अंडर द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब हम सेकंड मोड करने जा रहे हैं, दैट इज कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब इस लिक्विड को हीट मिल रही है, अब ये जो वाटर है अंदर, इसको हीट मिल रही है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो वाटर है, राइट, यहाँ से जो हॉट वाटर है इट विल मूव अप, और जो कोल्ड वाटर है इट विल मूव डाउन। ठीक है, the hot water on receiving the heat from the candle it will move up and the cold water it will move down। अब उस सब्सटेंस के, उस बीकर के अंदर जो लिक्विड की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, उस बीकर के अंदर जैसे उस वाटर ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट हो रही है ऊपर नीचे, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, सो इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसके पास हीट है, देखो अब वो खुद अपनी पोजीशन लीव करके ऊपर गया। Okay, so here the particles having heat will leave their positions and will go to the cold end। ठीक है, और ये किसमें होता है, लिक्विड्स और गैसेस में होती है इस तरह की हीट ट्रांसफर। जैसे मैंने आपको जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो एग्जांपल दी थी ना कि गौरीश ने मेरे को बुक पास करनी है। फर्स्ट केस में गौरीश ने क्या किया, गौरीश ने फ्रेंड्स को पास करते करते मुझे बुक पास की है। ठीक है, तो वो कंडक्शन मोड में आ गया। फिर गौरीश अपनी सीट से उठ के मेरे पास आया बुक देने के लिए, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, जहां पर पार्टिकल्स जो है वो अपनी जगह लीव करते हैं एंड दे मूव टू द कोल्ड एंड। देखो यहाँ पर भी जो हॉट मॉलिक्यूल था उसने अपनी पोजीशन छोड़ी, वो ऊपर गया कोल्ड के पास, तो यहाँ से जो कोल्ड था वो हॉट की पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे कन्वेक्शन करंट्स जो हैं दे आर सेट अप इन दिस वे, देयर आर कन्वेक्शन करंट्स दैट आर सेट अप। ठीक है, तो ऐसे ही जो हॉट एयर है इट राइजेस अप एंड कोल्ड एयर इट टेक्स इट्स प्लेस। ठीक है, तो ऐसे ही गैसेस में भी होता है कि जो हॉट एयर है, जैसे स्मोक है, वो आपको ऊपर ही जाता क्यों नजर आता है, क्योंकि स्मोक क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ हॉट एयर। तो हॉट एयर हमेशा ऊपर जाएगी और जो ठंडी एयर है वो हमेशा नीचे आएगी। ठीक है, ये स्मोक की एग्जांपल होगी। उसके बाद आपने मुझे रेफ्रिजरेटर्स की, ठीक है, एसीज की एग्जांपल भी दी हुई है, राइट। रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में क्या होता है, एसीज में ऊपर जो होती है वो क्या है, कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, जो हॉट एयर नीचे वाली है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, सो इन दिस वे देयर इज हीट ट्रांसफर। रेफ्रिजरेटर्स में भी सेम है, जो रेफ्रिजरेटर्स का लोअर पार्ट है दिस इज हॉट, तो हॉट ऊपर चला जाएगा, यहाँ से जो फ्रीजर वाले पार्ट में जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाएगी। तो इसलिए जो आपके चीजें हैं, द थिंग्स दैट यू केप्ट हियर विच आर हॉट, एक्चुअली वो ठंडी हो जाती हैं बाद में। ठीक है, तो ऐसे ही काम होता है, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसीज हो गए। ठीक है,
So smoke is also an example in which we are showing the convection mode of heat transfer. Heating of the liquids. अब उस सब्सटेंस के अंदर जो लिक्विड है वो कैसे हीट अप गेन कर रहा है, इट इज बाय द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है बेटा. तो सिमिलरली मैंने एक आपको एक्टिविटी भी करवाई थी KMnO4 की, दिखाई थी ना आपको वीडियो में. एक ऐसी उन्होंने फ्लास्क ली थी, याद है आपको. उस फ्लास्क में उन्होंने KMnO4 के क्रिस्टल्स डाले थे दैट वर पिंक इन कलर यूजिंग अ स्ट्रॉ. ठीक है, उसके अंदर सारा पानी था. तो जैसे जैसे आप उसको हीट सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, वैसे वैसे ये जो पिंक कलर था ये सारी जगह डिस्पर्स होना शुरू हो गया. द पिंक कलर इट स्टार्ट्स डिस्पर्सिंग. ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के क्रिस्टल्स लिए थे हमने. तो पहले जो कलर था वाटर था, इट वाज ओनली ट्रांसपेरेंट. सॉल्यूशन जो था आपका ट्रांसपेरेंट था. पर जब हमने हीट ट्रांसफर करनी शुरू की, तो आफ्टर ट्रांसफरिंग हीट whole solution becomes pink purple. ठीक है जी, सारे का सारा सॉल्यूशन कैसे हो गया, पिंक पर्पल हो गया था. याद है आपको? डू यू रिमेम्बर दैट वीडियो? ठीक है, सो दिस इज बाय द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. और मैंने आपको एक एक्टिविटी करने को दी थी, जैसे यू कैन टेक द कैंडल. कैंडल के ऊपर एक बारी हैंड रख के देखो और कैंडल की साइड पे हैंड रख के देखो. ठीक है, राइट. व्हेन यू आर प्लेसिंग योर हैंड हियर यू विल फील वार्मथ ऑफ दैट कैंडल. ठीक है, आपको लगेगा ना गरम गरम लग रहा है कुछ. ओके, सो दिस इज ड्यू टू द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जहां पर जो आपकी हीट है, जो हॉट है, ठीक है, जो हॉट एयर है इट विल मूव अप एंड द कोल्ड एयर इट विल टेक इट्स प्लेस. बट ऑन द साइड्स हमने ये पढ़ा है कि हॉट एयर ऊपर जाती है, बट हॉट एयर जो है वो साइड्स पे नहीं जाती. तो आप जब साइड्स पे ऐसे हैंड रखोगे तो यू विल नॉट फील वार्मथ. क्यों? क्योंकि जो हॉट एयर है साइड्स पे नहीं जा रही है, इट इज ओनली मूविंग अबव. ठीक है, तो साइड्स पे आपको कुछ भी वार्म नहीं नजर आएगा. ठीक है, क्लियर? तो इसी पे ही बेस्ड है, कन्वेक्शन मोड पे ही बेस्ड है हमारे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. Based on the convection mode of heat transfer, we are having the land breeze and the sea breeze. तो सबसे पहले लैंड ब्रीज की बात कर लेते हैं. लैंड ब्रीज, this phenomena it occurs in the night time, right, in the coastal areas. जो people are the people that are living near the coastal areas, they feel this phenomena of land breeze and the sea breeze. ठीक है, and the land breeze phenomena it occurs in the night time. This is land and this is the sea part. ठीक है, नाइट में क्या है, देयर इज नो सन, तो यानी कि जो लैंड है इट विल बी कोल्डर. दिस इज द कोल्ड बॉडी हियर. और जो सी है दैट विल बी मोर वार्मर देन द लैंड. ठीक है, अब मोर वार्मर का मतलब क्या है कि दिस इज द हॉट बॉडी. ठीक है, तो जो एयर है फ्रॉम द हॉट बॉडी इट विल मूव अप. यहां से जो एयर है वो ऊपर चली जाएगी. ये वाली जो कोल्ड एयर है ये इसकी जगह लेने की कोशिश करेगी, इट विल टेक इट्स प्लेस. तो ऐसे जो ब्रीज है इट इज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द फ्रॉम लैंड टू सी. ठीक है, जो ब्रीज है वो कहां से कहां जा रही है, लैंड टू सी जा रही है. तो एक ऐसे कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएंगे. ठीक है, जहां पर
ये जो लैंड वाली एयर है ये इधर जाएगी, ठीक है, जो सी वाली है वो ऊपर जाएगी। अगेन जो ऊपर से कोल्ड एयर है वो फिर से नीचे आएगी, ठीक है। सो इन दिस वे द फिनोमेना इट विल टेक प्लेस। ओके, हाँ जी ठीक है बेटा। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आते ही हो, आई गेस पढ़ा है आपने पहले ये, ठीक है। सो आप सेइंग यस, ठीक है। कमिंग टू द सी ब्रीज नाउ। सी ब्रीज में क्या हो रहा है? दिस फिनोमेना इट occurs in the daytime, daytime जहां पर sun है, right? So the land it is maximally receiving that sun rays, ठीक है। तो लैंड जो है वो ज्यादा गर्म है as compared to the sea that is less hot, or you can say this is the cold end, ठीक है। तो ये हॉट एंड हो गया एंड दिस इज द कोल्ड एंड। अब यहाँ से जो hot air है it will move up and the cold air from the sea it will rushes to take its place, ठीक है। So in this way the breeze it will start moving from the sea towards the land, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, अब सी से जो ब्रीज है वो आएगी लैंड की तरफ, ठीक है। तो इस ब्रीज को हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज। वी कॉल दिस एज सी ब्रीज, ठीक है बेटा।